Good morning, students. Welcome back again. So, today we are going to study with chapter number 7 depreciation. Come to textbook page number 212. So, what is the meaning of depreciation? Definition of depreciation. So, what is the word depreciation is derived from Latin word depretium, which means what? Reduction. Every business concern acquires some fixed assets which are used for the business for its trading activity. So these assets are purchased for business with an intention of permanent use and not for resale. So in short, what is the meaning of depreciation? The value of assets get reduced due to wear and tear of assets. मतलब अपनी जो assets की value है वो कम होती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल टुडे वी परचेज अ मोटर कार फॉर 6 lakhs. So if next year if we go to sale for that motor car, we will not get amount more than 6 lakhs, we will get amount less than 6 lakhs. Why? Because it is a fixed assets and its resale value is less. जो asset की value कम होती है resale value उस पे हम क्या चार्ज करते हैं? डेप्रिसिएशन. बट लैंड इज नेवर डेप्रिशिएटेड. जो ज़मीन की वैल्यू है वो कभी कम नहीं होती है, वो बढ़ती जाती है. तो लैंड इज ऑलवेज appreciated. So what is the meaning of depreciation? Depreciation is reduction in the value of asset due to wear and tear of asset. हम लोग depreciation मतलब क्या, एक asset को हम बहुत यूज़ कर रहे, यूज़ कर करके उसकी वैल्यू कम होगी, उसको क्या बोलेंगे हम? depreciation. You can see the definition. What is the meaning of depreciation? Depreciation is gradual decrease in value of asset for any cause. उसको बोलते हैं depreciation. So depreciation के क्या क्या causes हो सकते हैं? wear and tear, passage of time, obsolescence, depreciation के natural calamities and invention and market value. So now we are moving to factors we consider while charging a depreciation. अगर हमें depreciation charge करना है तो क्या factors है? Because depreciation is always charged on fixed assets. So what is the main part? First we have to count the cost of asset. Second is estimated value of assets, estimated life of asset and estimated value of asset. So what is first? Cost of asset. What is important part? Cost of asset बहुत ही important है because historical cost asset represent the money spent in connection with this acquisition, installation, improvement. मतलब पहले जिस टाइम हमने वो परचेस किया था एसेट वो हिस्टोरिकल कॉस्ट है. ओरिजिनल कॉस्ट कैसे काउंट होगा? परचेसिंग प्राइस ऑफ एसेट्स प्लस इंस्टॉलेशन. उसको उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस एक्सेट्रा. फिर लाइफ, उसकी लाइफ कितनी है? 10 ईयर्स, 11 ईयर, उसको एस्टिमेटेड लाइफ बोलते हैं. और उसकी स्क्रैप वैल्यू मतलब अगर हम बेचने जाए तो रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है उसको? बिकॉज ऐसा अगर एसेट है, अगर हमने उसको यूज़ किया तो हम लोग उसको रीसेल वैल्यू उसकी कम आएगी. इन अवर लैंग्वेज वी आर टेलिंग दैट द डिस्पोजेबल वैल्यू और भंगार वैल्यू जिसको बोलते हैं. तो रीसेल स्क्रैप वैल्यू इज अ रीसेलेबल वैल्यू और एसेट एंड ऑफ इकोनॉमिक लाइफ. 10 साल मैंने वो यूज़ करने के बाद अगर जो वैल्यू होगी वो उसकी होती है रियलाइजेबल वैल्यू. अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं. कम टू मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन. ऐसे देखा जाए तो बहुत से मेथड्स डेप्रिसिएशन के. फिक्स इंस्टॉलमेंट, डिमिनिशिंग एन्युइटी, फंड मेथड, रिवैल्यूएशन मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, मशीन आवर रेट मेथड. बट इसमें से इन आवर 11th स्टैंडर्ड सिलेबस वी हैव टू स्टडी विद 2 मेथड. व्हाट आर दैट? फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड एंड reducing balance method. So now first we'll study with fixed installment method. So what is the meaning of fixed installment method? So what is fixed installment method? The method of fixed installment, नाम से पता चलता है. ऐसा मेथड जिसमें every year the depreciation is fixed value, it is calculated. It is always calculated on which cost? Original cost of assets. तो मेथड, ऐसा मेथड जो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट पे काउंट होता है उसको कौन सा मेथड बोलते हैं? फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड. सो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के लिए डेप्रिसिएशन का एक फॉर्मूला बोल सकते हैं हम. ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट्स इन ईयर. जैसे अभी अपना जो एग्जांपल है उसमें ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 15,000, इंस्टॉलेशन चार्जेस 3,000, स्क्रैप वैल्यू है 2,000 अपॉन 10 years इज लाइफ. सो 15 + 3 इज 18, 18 minus 2 is 16, 16 divided by 10 is 1,600. So depreciation per annum is the cost of asset into rate of depreciation upon 100. So this is called as fixed installment method. फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के बाद हम पढ़ने वाले रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है देखो. अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन रिमेन्स फिक्स
और सेकेंड जो मेथड है उसमें डेप्रिसिएशन क्या होगा, असेट्स गोज रेड्यूसिंग। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड ऑलवेज ओरिजिनल कॉस्ट पे होता है, डेप्रिसिएशन रिटर्न डाउन वैल्यू में जो उसकी कॉस्ट होती है वो रिड्यूस बैलेंस शीट में होता है। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन सेम एवरी ईयर, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कॉस्ट डिक्रीजिंग। वैल्यू ऑफ फिक्स असेट कैन बी reduced और जीरो टू जीरो, फिक्स असेट कैन नॉट बी जीरो reduced टू जीरो। प्रॉफिट होता है क्या, येस, प्रॉफिट्स आर मोर ड्यूरिंग अर्लियर ईयर्स, प्रॉफिट्स आर लेस। टैक्स लॉ, इट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज बाय एनी लॉ, इट इज़ रिकॉग्नाइज बाय टैक्स। सूटेबिलिटी, ये मेथड किसके लिए सूटेबल है, जिसमें होते हैं रिपेयर चार्जेस, और ये मेथड किसके लिए होता है, रिपेयर चार्जेस कम होगा तो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड यूज़ होता है, रिपेयर चार्जेस मोर होगा तो रिटर्न डाउन। डेप्रिसिएशन का स्ट्रेट लाइन होती है, रिटर्न डाउन वैल्यू का डाउनवर्ड होती है। अब हम हमारे जर्नल एंट्रीज पे आते हैं। फर्स्ट एंट्री, एसेट्स परचेज। अगर कोई भी हम एसेट्स परचेज करते हैं तो व्हाट इज द एंट्री, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। फिर सेकेंड एंट्री, परचेज और एसेट ऑन क्रेडिट, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू पार्टी, लेकिन नॉर्मली हमें एसेट्स और कैश की एंट्री ऑलवेज आती है। फिर एक्सपेंसेस होगा तो भी एंट्री सेम होगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। डेप्रीसिएशन की एंट्री याद रखो, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। जो हमारी डेप्रिसिएशन है वो उसकी ये एंट्री होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। जो भी डेप्रिसिएशन होता है वो एवरी ईयर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। अब सेकेंड ईयर होगा तो हमारे लिए दो एंट्री होगी, एसेट्स की डेप्रिसिएशन की और प्रॉफिट एंड लॉस की। अगर थर्ड ईयर होगा तो अगेन डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी। फिर लेकिन सेल बोला होगा तो सेल की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। फिर सेल में अगर प्रॉफिट हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रांसफरिंग प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट ऑन सेल टू प्रॉफिट एंड लॉस। अगर सेल में हमें लॉस हुआ तो ऑपोजिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट लॉस टू एसेट। तो अब जब भी सेल होता है, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट होता है, लॉस हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होता है। और एवरी ईयर हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहना है, और डेप्रिसिएशन का बैलेंस कहाँ भेजना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अभी देखो ये इलास्ट्रेशन वन देखो, स्ट्रेट लाइन मेथड का सम है। सिद्धि लिमिटेड, और इज गिवन इन द प्रॉब्लम, सिद्धि लिमिटेड परचेज मशीनरी 2 lakhs ऑन 1st April, डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट है। हमें जर्नल पूछा, अभी मैंने जो आपको एंट्री सिखाई वो हमें करनी है। ईयर कौन से दिए, 3 years, 15, 16, 16, 17 एंड 17, 18। अब देखो सबसे पहले एंट्री क्या होगी, एसेट परचेज की, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो क्या एंट्री होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, अमाउंट इज 2 lakhs। अब उसी साल में अप्रैल 15 को जो ईयर चालू हुआ है 2050 अप्रैल 1, वो एंड कब होगा, मार्च 31। तो जब भी ईयर एंड होता है तब क्या चार्ज होता है, डेप्रीसिएशन। सो एंट्री क्या होगी, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। कितने परसेंट डेप्रीसिएशन है, 10%। अब वर्किंग नोट में आने का, डेप्रीसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे 2 lakhs पे 10% निकालो तो 20,000 आएगा। 2 lakhs में से 20,000 माइनस करो तो आंसर आएगा 1,80,000। सो ये जो 20,000 का डेप्रीसिएशन है वो हम एंट्री में लिखेंगे, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स में, मशीनरी में 20,000। अब जब ईयर उसी, तो जो बैलेंस है वो ईयर एंड को हमें प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करना है, डेप्रीसिएशन का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन अकाउंट 20,000। अब नेक्स्ट ईयर जब आएगा 2017 तो अगेन हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, लेकिन फिक्स अमाउंट रहेगी 20,000, बिकॉज फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है। तो डेप्रिसिएशन तो मशीनरी 20,000, और सेम उसका भी बैलेंस हमें प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। फिर नेक्स्ट 2018 आएगा तभी भी सेम हमें एंट्री करनी है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 20,000, उसका भी बैलेंस हमें प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करना है, प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्रिसिएशन 20,000। वही वर्किंग नोट में दिखाया, फर्स्ट ईयर का 180 आया, सेकेंड ईयर का 20 माइनस करके 160, थर्ड ईयर का 20 माइनस करके 140। सो दिस इज कॉल्ड एज विच मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। अब जो हमने जर्नल किया है वही हमें लेजर में भी दिखाना है। देखो दो लेजर बनाने का, मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो लिए सबसे पहले 2015 अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट 2 lakhs। अब हमें डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या की हमने, असेट्स के ऑलवेज क्रेडिट में आता है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ईयर चेंज 2016 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 20,000। अब 2 lakhs में से 20,000 माइनस करो, 1,80,000 आया, बैलेंस को मार्च 31 को नाम दो, टू बाय बैलेंस कैरी डाउन 1,80,000। अब उसको नीचे ब्रॉड डाउन करना है तो अप्रैल 1 2016 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1,80,000। सेम एवरी ईयर क्रेडिट में डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करो। अब 16 अप्रैल को स्टार्ट हुआ, वो ईयर कब एंड होगा,
March 31st 17 बाय डेप्रिसिएशन अगेन 20, अगेन क्लोज 180 में से 20 माइनस करो 160, उसको भी नीचे 2017 ईयर में ब्रॉड डाउन करो, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1,60,000, अगेन थर्ड ईयर तक जाना है। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 20,000, 1,60,000 में से 20 माइनस करो 1,40,000, उसको भी नीचे ब्रॉड डाउन करो, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1,40,000। ये था अपना मशीनरी अकाउंट। अब डेप्रिसिएशन अकाउंट जो होगा उसकी एंट्री, उसमें 3 साल 3 ईयर्स का डेप्रिसिएशन दिखाना है, तीनों बार टू असेट अकाउंट लिखना है, टू मशीनरी टू मशीनरी टू मशीनरी, 16 ईयर का 20, उसको क्लोज करके प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करो 2016 मार्च 31st। अगेन 17 ईयर का भी टू मशीनरी 20, उसको भी क्लोज करके प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करो सेम डेट 20,000। थर्ड ईयर का भी 220, उसको भी क्लोज करके प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करो। तो इन शॉर्ट ऑलवेज एवरी ईयर एंड बैलेंस और डेप्रिसिएशन गोज इन विच अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपको पता होना चाहिए। सो हियर वी कंप्लीटेड आवर प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। आई होप आपको ये लेक्चर समझा होगा। नेक्स्ट लेक्चर विल मूव इट नेक्स्ट problem. Till that time, work hard.